Yes everyone, let us see this new topic mutual induction. क्या है पहले डेफिनेशन लिखते हैं. डेफिनेशन पहले लिखते हैं. The phenomenon of induction of EMF in a secondary coil due to change in current in primary coil, change in current in a primary coil. I'll explain, just hold on. In a primary coil, due to change in current in a primary coil is called mutual induction. तो कोई एक प्राइमरी कॉइल में अगर करंट बदलेगा, उसके चलते कोई सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ बनेगा, तो इस फेनोमेनन को हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन. I'll try to explain it. See here, I made a primary coil here. This is a primary coil. This is a secondary coil, and you see this primary coil is connected across a battery with a variable resistance. So when a current is passing through this coil, some flux are generated. Let's call that flux as phi1. Phi1 amount of flux is generated by the primary coil. कितना है phi1? phi1 का वैल्यू आप जानते हो. phi1 क्या है? B into area of the coil. B क्या है? mu Ni/L. mu Ni/L सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मालूम है. mu Ni/L. तो n is the number of turns, L is the length of the coil. वो सारा चीज आपको मालूम है. कहने का मतलब है कि जो phi1 है that is proportional to I1. जो phi1 है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, that is proportional to the current passing through the primary coil. And you see, entire flux of this primary coil is not linking with the secondary coil. कुछ फ्लक्स लिंक कर रहा है, कुछ लिंक नहीं कर रहा है. कुछ फ्लक्स लिंक कर रहा है, कुछ फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है. कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है? चलो मानते हैं the amount of flux linking with the secondary coil is phi2, and obviously phi2 is less than phi1. Excuse me. तो हम क्या देख रहे हैं? phi2 is less than phi1. कितना फ्लक्स लिंक करेगा? पास में होगा तो ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, दूर में होगा तो कम फ्लक्स लिंक करेगा. मतलब phi2 phi1 का एक फ्रैक्शन है. phi2 is a fraction of phi1. आप कह सकते हो कि phi2 is nothing but k times phi1. k क्या है? It's a constant, it's a fraction, जो कि k का वैल्यू क्या है? k का वैल्यू है less than 1. बाद में देखेंगे. इसको कहते हैं दोनों कॉइल के बीच में ये क्या है? कपलिंग फैक्टर. k को कहते हैं कपलिंग फैक्टर. जाएंगे बाद में देखेंगे. तो इतना तो समझ में आया. phi2 is k times phi1. Now you see, when a current I1 is passing in the primary coil, a flux phi1 is produced in the primary coil proportional to I1, and a part of that flux is k phi1 which is linking with the secondary coil. Phi1 is proportional to I1 and phi2 is proportional to phi1 depending upon the coupling coefficient. कितना दूर में रखा है, पास में रखा है. बहुत दूर रखेंगे तो k का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, है ना. तो ये k कभी भी 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि phi1 जनरेट हो रहा है, तो उससे ज्यादा कहाँ इसमें आएगा, है कि नहीं. इन दैट केस, अभी अगर मैं ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको बदलता हूँ, इफ आई चेंज द रेजिस्टेंस द करंट विल चेंज. व्हेन द करंट चेंजेस phi1 विल चेंज. व्हेन phi1 चेंजेस phi2 विल चेंज. व्हेन phi2 चेंजेस देयर विल बी एन ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, and this voltmeter will show deflection here. That means you are getting a potential difference. बेचारा खाली पीली खड़ा था, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं था, उसमें ईएमएफ हो गया. This phenomenon of induction of EMF in a secondary coil. This phenomenon of induction of EMF in a secondary coil due to change in current in a primary coil is called mutual induction. Now you can go back to the definition and see.
What is mutual induction? The phenomenon of induction of EMF in a secondary coil due to change in current in a primary coil is called mutual induction. ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? I can give you the example. Example is the case of a transformer. ट्रांसफार्मर में ये वाला कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल कह सकते हो. दिस कॉइल इज ए प्राइमरी कॉइल. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सारा चीज लिखना है. ये सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है. सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल, यू सी द टू कॉइल्स आर जस्ट नेम्ड ए सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल. नाउ you see, if you allow a current to pass through the primary coil, मैं प्राइमरी कॉइल में कोई करंट को अलाउ करता हूं जाने के लिए. Now this current passing here will produce a flux. That flux generated will be passing through the iron core. इस आयरन कोर से होते हुए जाएगा, इधर से होते हुए आएगा. ये आयरन का बनाया हुआ, इधर से होते हुए आएगा. And you see that is passing through the core and coming here. समझ में आ रहा है क्या? ये जो फ्लक्स यहाँ से बन रहा है, जो फ्लक्स यहाँ पे बन रहा है, सेम फ्लक्स इसके साथ भी लिंक कर रहा है. अब अगर हम प्राइमरी के जो करंट था I1, इस करंट को अगर बदलेंगे तो प्राइमरी के अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदलेगा. उसके चलते प्राइमरी में भी एक वोल्टेज डेवलप होगा. जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. लेकिन प्राइमरी का फ्लक्स बदलने के कारण सेकेंडरी में जो ईएमएफ होगा उसको हम कहेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ. यू विल फाइंड सम पोटेंशियल डिफरेंस हियर, यू फाइंड सम ईएमएफ डेवलपिंग अक्रॉस these two terminals. The secondary coil is no way electrically connected to the primary coil, but they are all magnetically coupled. यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ मिल रहा है. तो हम क्या कहेंगे? The EMF induced in the primary coil is self-induced EMF. The EMF induced in the secondary coil is mutually induced EMF. समझ में आया क्या? तो ये सब 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है. तो हमें लिखना है इसको एग्जाम्पल में. The EMF induced in primary coil or primary coil of a transformer. ट्रांसफार्मर पर एक सेपरेट आर्टिकल है, हम लोग जिसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज सेल्फ इंड्यूस्ड, इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन. The EMF induced in the secondary, the EMF induced in the secondary coil is mutually induced EMF. म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF. ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन है. इंड्यूस्ड EMF. ठीक है. So what is the type of EMF in the secondary coil of a transformer? You will say it is statically induced EMF and mutually induced EMF. Primary में statically induced EMF, but self induced EMF. चलिए निकालने की कोशिश करते हैं. What is the mutual induction process? जैसे जैसे हम लोग अभी देखें कि सपोज यहाँ पे कुछ phi1 flux जनरेट हो रहा है, when a current I1 is passing and some phi2 flux is linking. Okay. Now let us see the calculation part. Let phi1 is flux generated by primary coil. प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट हो रहा है phi1. तो कितना होगा? इट इज फ्लक्स डेंसिटी हियर, दैट इज B into area. So it is, you say it is coming out to be B in the primary coil into area of the primary coil. What is B? It is mu N1 I1 by L1. N1 क्या है? Number of turns in the primary. इसको हम 1 से डिजिग्नेट करते हैं, इसको 2 से डिजिग्नेट करते हैं. इसका सारा चीज को 1 लिखेंगे, इसका सारा चीज को 2 लिखेंगे, है ना? So mu N1 I1 by L1 into A1. This is phi1. Phi2 is
फ्लक्स लिंकिंग विथ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसको हम phi2 कहेंगे। सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसको अगर हम phi2 कहेंगे, वो क्या है? इट इज नथिंग बट k टाइम्स phi1। व्हाट इज k? k इज कॉल्ड कपलिंग कोएफिशिएंट, कपलिंग कोएफिशिएंट। क्या है ये क्वांटिटी? डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द टू कॉइल्स। ये दोनों कॉइल का पोजीशन कैसा है, पास पास है कि दूर दूर है, सीधे सीधे रखे हैं कि टेढ़ा करके रखे हैं, अकॉर्डिंगली कितना फ्लक्स इसका इसके साथ लिंक करेगा डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ कॉइल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द कॉइल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों कॉइल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर विल डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। और के का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अगर सारा का सारा फ्लक्स लिंक कर जाएगा तो के का वैल्यू होगा 1। अदरवाइज डिपेंड्स एज इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ कॉइल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑलवेज लेस देन और एट मोस्ट इक्वल टू 1। ये 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। अच्छा, नाउ दिस फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। इफ देयर इज ए चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, I1 में कोई चेंज आया, if there is a change, when there is a change in primary current, कोई जब प्राइमरी करंट में कोई चेंज आएगा, then phi1 and subsequently phi2 चेंज है ना, तो हम क्या कहेंगे? सो EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल और सेकेंड कॉइल क्या होगा? सेकेंड कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा? सेकेंड कॉइल कितना हो जाएगा? E इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू N d phi by dt, with a minus sign, you know, it is minus N2 d phi2 by dt। थोड़ा इसका वैल्यू डाले तो हम कहेंगे इट इज माइनस N2 d by dt ऑफ k इंटू phi1, k इंटू phi1। और phi1 क्या था? phi1 था ये पूरा चीज था phi1, तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी k mu n1 i1 a1 by L1, so it is coming k into phi1। इसमें देखो क्या बदल रहा है? only I1, rest of the things are all constants, they can be brought outside the differentiation। क्या बन गया ये? k times mu n1 n2 a1 by L1 whole into d I1 by dt। तो क्या देख रहे हैं हम? The EMF induced in the secondary coil, call it E2। E2 is given by this expression. This expression can be written as minus M di1 by dt। So what you find? There is a EMF in the secondary coil which is proportional to di1 by dt। तो ये M क्या है? This M, where what is M? M is called coefficient of mutual induction। देखो तो ये क्या वैल्यू निकला? M के लिए क्या वैल्यू निकल गया? M के लिए पूरा वैल्यू निकल गया, k mu n1 n2 a1 by L1। तो हम कहेंगे इट इज k mu n1 n2 a1 by L1। मतलब M ये सारा चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कॉइल्स एंड देयर पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो M डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कॉइल, मतलब उसका लेंथ, उसका एरिया, उसका नंबर ऑफ टर्न्स एंड रिलेटिव पोजीशन between them
और relative position of the coils, relative position of coils with respect to each other. अब देखो K जितना ज्यादा होगा M का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, K जितना कम होगा M का वैल्यू उतना कम होगा। मान लो दो कॉइल को बहुत दूर दूर रखा गया है, मतलब एक का जनरेटेड फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक ही नहीं कर रहा है। इन दैट केस यू विल से म्यूचुअल इंडक्टेंस इज जीरो, देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन तब हो रहा है जब एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक कर रहा है। इफ दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर K विल बी जीरो। अब जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा हम क्या रखेंगे, कहेंगे यहाँ पे कि हायर इज द वैल्यू ऑफ K, हायर इज द वैल्यू ऑफ K। K क्या था भाई, इट वाज phi 2 by phi 1, क्योंकि phi 2 क्या था, K phi 1, and this is less than 1, phi 2 is always less than phi 1, so higher is the value of K, greater is the mutual inductance, जितना ज्यादा होगा K का वैल्यू उतना ज्यादा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो चीजें आपको समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा होगा। देखो ये स्टेटमेंट को मैं इतना एलाबोरेटली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वाज ए क्वेश्चन once upon a time long back. Suppose here is a ring, ये रिंग में एक करंट फ्लो कर रहा है, सेम रिंग को 3 बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेम रिंग है, ये सेम रिंग है। अब ये तीनों केस में मैं क्या करता हूँ, तीनों रिंग के साथ और एक एक रिंग रखता हूँ और मैं बताता हूँ कौन सा दोनों रिंग के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा। ये है दूसरा रिंग, ये है तीसरा रिंग, सपोज हम कहेंगे ये है तीसरा रिंग, और थोड़ा से बनाते हैं, ये है यहाँ पे ये। तो यू सी देयर पेयर ऑफ रिंग्स, केस ए, केस बी, केस सी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन हैज कम, आई एम राइटिंग इन लैंग्वेज, सो यू विल से इन वर्ड्स, इन each case find, in following cases rather, in following cases find in which case the coefficient of mutual inductance is maximum in the pair of rings। मतलब एक रिंग में अगर करंट फ्लो करेगा दूसरे रिंग में तो ईएमएफ होगा, क्योंकि इसका करंट अगर बदलेगा तो उसमें भी ईएमएफ होगा। आपको पता करना है कौन सा केस में ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा कब होता है, व्हेन K इज मोर, मतलब जब प्राइमरी का ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विल बी मोर। व्हेन phi 2 इज मोर देन d phi 2 by dt विल बी आल्सो इक्वली, क्योंकि वो जो K के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। हम लोग यहाँ पे तो देखें ये K वाला टर्म है, और इससे पहले क्या देखें, इट इज कमिंग आउट टू बी K टाइम्स दिस। K किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलेटिव पोजीशन के ऊपर। K चीज क्या है, इट इज phi 2 by phi 1, क्योंकि phi 2 was equal to K phi 1, ऐसे हम लोग लिखे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना K ज्यादा होगा phi 2 उतना ज्यादा होगा, phi 2 जितना ज्यादा होगा तो d phi 2 by dt will be more। समझ में आ रहा है क्या, इतना जल्दी नहीं बदलेगा, क्योंकि दिस K टर्म इज कमिंग इन द डिफरेंशिएशन, C K आ गया यहाँ पर। अच्छा, तो आपको देखना है कि कौन सा केस में अगर प्राइमरी में करंट जाता है तो सेकेंडरी में सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। मैं तीनों केस का म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में देखना चाहता हूँ। आपको तो मालूम है कि इफ यू पास ए करंट इन दिस कॉइल द लाइंस ऑफ फ्लक्स विल बी ऑल गोइंग लाइक दिस, एक्सियली निकलता है।
इस केस में भी ऐसा ही है ना, और इस केस में भी ऐसा ही। नाउ यू सी इन व्हिच केस मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, बिगर रिंग इज लिंकिंग विद द स्मॉलर रिंग। इस केस में तो वो सारा ऐसे जा रहा है, इस केस में कुछ यहाँ से घुस के आएगा, इधर से जाएगा, कुछ यहाँ पर ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहे हैं, मतलब इस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मेजर फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंट्रेंस में आया था। तो आप क्या कहोगे, एज maximum flux of one ring is linking with other ring in case C. Therefore M is maximum। कौन सा केस में M मैक्सिमम हो जाएगा, इन केस C। म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम इन केस C, मैक्सिमम इन केस C। ठीक है, मैक्सिमम इन द केस C। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। चलिए अब देखते हैं कि दो कॉइल के बीच में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कब हो सकता है। मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो सकता है, तो कैलकुलेटिंग मैक्सिमम म्यू और मैक्सिमम एम। एम मैक्सिमम कब होगा, जब प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगा। प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम ईएमएफ होगा। सोचो तो प्राइमरी का सारा फ्लक्स दूसरे के ऊपर लिंक करेगा, ऐसा कब हो सकता है, व्हेन दिस इज पॉसिबल। सपोज आई टेक ए आयरन कोर समथिंग लाइक दिस, मैं कोर ऐसे लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस कोर के ऊपर मैं एक कॉइल ऐसे ऊन कर देता हूं। आई कॉल दिस कॉइल इज द प्राइमरी कॉइल। नाउ दिस इज आयरन कोर और ये प्राइमरी कॉइल है, मतलब जो फ्लक्स बनने वाला है इस आयरन कोर से होते हुए हो जाएगा। और मैं क्या करता हूं, इसी कॉइल के ऊपर मैं एक दूसरा कॉइल भी वाइंडिंग कर देता हूं। कैसा, से लाइक दिस, आई टेक ए सेपरेट कॉइल लाइक दिस। Now you see this one is representing the secondary coil, this one is representing the primary coil। अब इसमें होगा क्या, सारा का सारा फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल से बनेगा, वो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक कर रहा है कि नहीं। सारा का सारा फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक कर रहा है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर maximum mutual inductance all flux of primary coil must link with secondary coil। प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगा तो हम कहेंगे कि हाँ मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होने वाला है। ऐसा कब होगा, दिस इज पॉसिबल, दिस इज अनदर वन मार्क क्वेश्चन। दो कॉइल के बीच में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होता है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन both coils have same length, same area and wound on, किसके ऊपर वुंड किया गया है, ऑन सेम कोर के ऊपर अगर दोनों को हम वाइंडिंग कर देते हैं तो जो भी φ1 होगा वो भी φ2 होगा।
In this case, all flux generated by the primary coil is equal to secondary coil. So K, the coupling coefficient is 1. यहाँ का चीज तो समझ में आ गया। तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा? जब A से होगा। अच्छा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था? सो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था क्या था? इट वाज K म्यू N1 N2 A by L1। ये ऐसा था। हम लोग ये फॉर्मूला निकाले हैं, मन से नहीं लिख रहे हैं। वी हैव ऑल कैलकुलेटेड दिस वैल्यू K times म्यू N1 N2 A1 by L1। दिस वाज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अब दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स तो अलग अलग है, म्यू सेम है। N1 N2 को N1 N2 रहने दीजिए, A1 A2 दोनों बराबर है। प्राइमरी कॉइल का A1, सेकेंडरी कॉइल का A2 दोनों बराबर है। से इट इज A। प्राइमरी कॉइल का L1, सेकेंडरी कॉइल का L2 दोनों बराबर है। से इट इज L। तो आई राइट K म्यू N1 N2 A by L। और K का वैल्यू क्या हो जाएगा? K का वैल्यू इज 1, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इट कम्स आउट टू बी म्यू N1 N2 A by L। दो कॉइल के बीच में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो सकता है? फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू N1 N2 A by L। ये फॉर्मूला जो है ये किसका है? M मैक्सिमम इज कमिंग दिस। अच्छा, M अगर मैक्सिमम ये हुआ, इसी को थोड़ा सजा के लिखते हैं। लेट अस राइट दिस इज म्यू N1 स्क्वायर A by L म्यू N2 स्क्वायर A by L। ऐसे लिख सकते हैं। देखो हर एक टर्म दो बार हो गया। म्यू 2 बार है, N1 2 बार है, N2 2 बार है, A 2 बार है, L 2 बार है। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक रूट ओवर ऑफ दिस। बट व्हेन यू राइट लाइक दिस, ये म्यू N1 स्क्वायर A by L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको याद होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। म्यू N2 स्क्वायर A by L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल। सो आई कैन राइट इट इज रूट ओवर ऑफ L1 L2। ठीक है। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर भेजा है उसमें वो मेंशन किया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, अगर दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है सर L1 और L2, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम? इट इज रूट ओवर ऑफ L1 L2। ठीक है। अदरवाइज इसको हम लोग पहले जेई के लिए पढ़ते थे, अभी आया है तो उसको कर लिए। तो क्या लिखे इसमें? L1 L2 क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। L1 L2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ the primary and secondary coil, where L1 and L2 are coefficients of self inductances, coefficient of self inductances of the two coils. थोड़ा सा जगह बनाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ दी टू कॉइल्स। दोनों कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अगर L1 L2 हुआ तो मैक्सिमम M क्या हो जाएगा? दिस रूट ओवर ऑफ L1 L2। यूनिट क्या होगा? ये भी हेनरी है, ये भी हेनरी है, तो M का भी यूनिट हेनरी ही हो गया। आप लिख सकते हो इसको। M का यूनिट क्या था यहाँ पे? M वी हैव कैलकुलेटेड दिस इज कमिंग इन द यूनिट ऑफ हेनरी, क्योंकि L का यूनिट हेनरी था तो इसका यूनिट भी हेनरी ही है। सो M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ L1 L2। वो दे देंगे। दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, एक कॉइल का है 400 मिली हेनरी, दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है 900 मिली हेनरी। वो दोनों कॉइल को यूज करके मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो सकता है? इट इज 900 into 400 का रूट ओवर दैट इज 600। सो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी 600 मिली हेनरी। सो लाइक दैट यू मस्ट रिमेंबर। दिस इज वेरी सिंपल आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है। और कैसा और भी कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि द कोएफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन है,
सिंपल क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coils is say 250 millihenry, mH मतलब मिली हेनरी, ठीक है। फाइंड if the current in one coil is given by I is equal to say 4t plus just a minute, I'll say I is equal to say 400t plus 60 ampere, then find EMF in the second coil। कितना सिंपल है, देखने से डरावना लगता है। There are two coils, दोनों कॉइल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया गया है। ये कॉइल है, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है, इट इज गिवन m, कितना है 250 मिली हेनरी। हाँ, तो हम कहेंगे EMF इन सेकेंड कॉइल क्या फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू m di1/dt। आप बोलोगे सर आप तो पहले माइनस लिखते थे, oh that minus sign is there, but that minus sign will be indicative of the polarity, कौन सा पोलैरिटी हायर होगा कौन सा लोअर होगा, है ना। तो इसमें ये मतलब मैं सीधा इसका वैल्यूज लिख रहा हूँ। m कितना दिया है 250 मिली हेनरी, मतलब 250 into 10⁻³ di1/dt, डेरिवेटिव ऑफ दिस di1/dt कितना हो रहा है, d/dt ऑफ 400t प्लस 60 करो तो कितना आ गया, इट इज कमिंग 250 into 10⁻³ into 400, डेरिवेटिव करेंगे तो 400t का होगा 400, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो तो कितना ज्यादा वोल्ट हो रहा है, बट ए लार्ज वोल्टेज कमिंग आउट 250 मल्टीप्लाई करिए 250 into 400, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 100, 25 into 4 is 100, 3 0 ये -3 के साथ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 100 वोल्ट। So what you find the EMF in the secondary coil is this। तो पूरा आर्टिकल में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, एक हुआ कि what is the unit, that is Henry, mutual inductance of between two coils depends upon what, depends upon the dimension of individual coils and the position of the coils with respect to each other। What is mutual inductance? The phenomenon of induction of EMF in a secondary coil, a variation of current in a primary coil। What can be maximum mutual inductance between two coils? It is equal to root over of L1 L2, the geometric mean of the self inductances। Or if the mutual inductance between two coils is M and the current in a primary coil is I1, then what is the EMF in the secondary coil? It is given by M di/dt। इसमें करंट बदलेगा, उसमें EMF होगा, कितना होगा m di/dt। इसमें क्या EMF होगा, EMF in the primary coil will be L di/dt, that is coefficient of self inductance। इसमें करंट बदलेगा तो इसमें जो EMF होगा that will be L di/dt, लेकिन इसमें करंट बदलने से इसमें जो EMF होगा that is m di/dt। m is for coefficient of mutual inductance। समझ में आया, बस इतना थोड़ा सा चीज याद रखना है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। Okay, somehow we have finished this small topic. Next we shall see AC in the next class. तब तक के लिए जय हिंद।